Hello guys, welcome back. In this module, we're gonna have a next question, practical question. In previous module, I hope you have understood the question. वहां पे हमें revaluation account, partners capital account और balance sheet सब पूछा था. Now in this question, let us understand क्या क्या पूछा है और accordingly क्या क्या हमें करना पड़ेगा. So this is our question now. That was question number 1. This is question number 3 from your booklet. So please open that page. तो आप भी marking कर पाओगे जो भी मैं बताऊंगा. So here we go. Let us read the question very carefully. Kishore Ravi Kumar were partners in business, sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. Their balance sheet as on 31st March 19. Capital accounts we have creditors, bills payable, general reserve, which is to be divided in partners. Plant machinery, debtors, furniture, bank. Let us go for adjustments. Let us read adjustments also. Kumar died on 1st July. So again in this question also, like previous question, April, May, June. Whatever calculation we have for Kumar's share, it would be for 3 months. Okay. Now, plant machinery revalue हुआ है, RDD is to be created बताया गया है. Drawings of Kumar up to the date of death is 5,000. Charge interest on drawings 500. Ready-made amount ही दिया है तो तकलीफ ही नहीं है. सर कितना months का amount ही है. His share of goodwill should be calculated for 3 years purchase of the profits of last 4 years, which were, so these are 4 years का profits mentioned. Previous question में 5 साल का average profit निकालना था, यहाँ पे 4 साल का निकालना है. And then will multiplied by 3. वहां पे 2 years purchase था, यहाँ पे 3 years है. Why I'm telling this is, ये similar adjustments ही आया है देखो दोनों question में अब तक. This is partner's share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. और वो कौन सा 2 year ये भी बोला है 3 and 4. Don't take 1 and 2. Last years मतलब 3 and 4. So clearly mentioned, कुछ confusion का chance ही नहीं है. So आपने अगर ये सब adjustments देखा, that is similar to question number 1. है कि नहीं? थोड़ा सा amounts या years में थोड़ा changes दिया है, but adjustments का base is same. But what we have to prepare is different. वहां पे full length question था, तीनों फॉर्मेट ठीक से बनाने थे. यहां पे देखो क्या बोला है, prepare profit loss adjustment account, deceased partners capital account and give working notes of profit and goodwill. Profit loss adjustment मतलब revaluation तो करेंगे ही, deceased partner का ही सिर्फ capital account पूछा है यहाँ पे. That means we have to prepare it for Kumar, Kumar's capital, ये ही बनाएंगे, 3 कॉलम नहीं रहेगा यहाँ पे. ना हमें बैलेंस शीट बोला है करने. अल्टरनेटिवली क्या करने बोला है, तो we have to give working note of profit and goodwill. Now when in question itself they are asking you for a working note, it has to be very fair and very stepwise. रफ वर्किंग नहीं करना हमें, ठीक है. इसको मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन में ही बताया गया है ये वर्किंग नोट दिखाने के लिए. So what all we need is, obviously for solution 3, first thing we'll prepare is profit loss adjustment account. Then Kumar's capital account will prepare. Kumar's capital account. So here we don't have partners columns now. This is amount column because only one partner's capital we are preparing. And then we will be having certain working notes. तो उसके लिए जगह छोड़नी है हमें. Now, let us start. ये देखो, ये आपका question 1 by 1 marking करते जाते हैं. Plant machinery और RDD मतलब daters को हमें marking करना है. Kumar died on 1st July. Like we have mentioned, it is for 3 months. Whatever calculation we have for current year. प्लांट मशीनरी को मार्किंग आ गया, डेटर्स को मार्किंग आ गया. नाउ फॉर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के लिए ड्राइंग्स दिया है हमें, तो वो हमें याद रखना है. ये क्या होगा, लेस फ्रॉम कुमार्स कैपिटल, मतलब ही व्हाटएवर अमाउंट्स वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल वी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल, व्हाटएवर अमाउंट वी हैव टू ऐड इन कैपिटल वी राइट ऑन क्रेडिट साइड. तो इन शॉर्ट ये जाएगा कैपिटल के डेबिट में, कुमार के. नाउ मूविंग फर्दर, again charge interest on drawings bola, this also be to be deducted from capital, no interest on drawings. So again on debit side of capital will record it. Then his share of goodwill we have to calculate as per the information available. और फिफ्थ दिया है his share in profit, कुमार share in profit, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा as per information. ये गुडविल और प्रॉफिट शेयर का कैलकुलेशन हमें वर्किंग वी हैव टू शो फेयर वर्किंग. ओके, सो तब अच्छे से कैलकुलेट करेंगे. So now what we have to do is we have to set a target कि कैसे हमें पहुंचना है ये सब के लिए. So first let's calculate all items required to complete Kumar's capital account. क्या क्या लगेगा Kumar's capital में? तो first of all basic we will be needing P&L adjustment account का profit or loss, Kumar's share in it,
ठीक है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए P&L एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, देन विल कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड देन विल कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट. So here we go. First of all, we will start with profit loss adjustment account का balances. Plant machinery 30,000 था, 35 हो गया. So obviously 5,000 का increase है. Now we don't have to show it in balance sheet क्योंकि balance sheet बोला नहीं है. Directly will give second effect in this account. So 5,000 का increase in asset would be profit. So on credit side we have recorded by plant and machinery. Then RDD is to be created. That itself means debtors gonna go down. उनका वैल्यू कम होने वाला है RDD के वजह से, और debtors मतलब एसेट का वैल्यू अगर कम होता है, so डेबिट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट में to RDD 1000. Now moving forward, और क्या है? देखो फर्नीचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक के बारे में भी फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है, बट वी डोंट हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. बैलेंस शीट करना ही नहीं है, तो इसलिए ये है वैसे का वैसा रखेंगे. बैलेंस शीट अगर करते तो सेम अमाउंट्स लिखते और इसका भी रीवैल्यूड अमाउंट लिखते, लेकिन ये करना ही नहीं है फिलहाल. सो हो गया, इतना ही है P&L एडजस्टमेंट में. ना कोई लायबिलिटी पे हमें इंक्रीज डिक्रीज बोला है, ठीक है. सो विल टेक टोटल, विल गेट बैलेंस व्हिच इज 4,000. 5,000 इज योर टोटल फॉर दिस साइड. सो बैलेंस 4,000 को डिवाइड करेंगे इन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है. वॉट एवर रेशियो इज मेंशन्ड 2:1. आउट ऑफ दीज we right now need only Kumar's share, क्योंकि कैपिटल में हमने क्या बनाया, खाली Kumar's कैपिटल अकाउंट बनाया, करेक्ट. सो वी विल बी नीडिंग दिस ओनली. किशोर और रवि का ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हमने, क्योंकि हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट करने बोला था, तो ये करना तो जरूरी है, बट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वी नीड ओनली Kumar's शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो हियर वी गो, लेट अस अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. Kumar's शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हमें मिल गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. Now what we'll do is we'll calculate goodwill, Kumar's share in it, and then we'll calculate his profit for the current year as well. और फिर वो सब इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे कुमार के कैपिटल में एक साथ. So goodwill के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे. This has to be exactly like this, क्योंकि इसको मार्क्स मिलेगा तो फॉर्मूलाज लिखना पड़ेगा, स्टेप वाइज जाना पड़ेगा आपको, तो ही फुल मार्क्स मिलेगा. So goodwill का फॉर्मूला हमें पता है, हमने लिख दिया. फिर एवरेज प्रॉफिट के लिए भी फॉर्मूला वी नो. सबका फॉर्मूला लिखने का क्या सर? हाँ, जितना पॉसिबल है उस सबका फॉर्मूला लिखो, ओके. हमें कुछ पॉइंट ही नहीं रखना है पेपर करेक्टर को मार्क्स काटने के लिए. सो वी विल राइट दिस फॉर्मूला एज वेल. एवरेज प्रॉफिट, ये देखो, ये 4 साल का टोटल डिवाइड बाय 4. सो एवरेज प्रॉफिट अपना आ गया 50,000, एंड देन गुडविल वुड बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस व्हिच इज 3. सो 50,000 इनटू 3 इट इज 1,50,000, बट दिस गुडविल इज ऑफ फर्म्स गुडविल. ये फुल फर्म का वैल्यू है गुडविल का. नाउ व्हाट वी नीड इज कुमार शेयर इन इट. सो कुमार का शेयर रेशो क्या है कुमार के लिए? इट इज 1/4. सो 1,50,000 फुल फर्म का गुडविल इनटू हिज शेयर, डिसीज्ड पार्टनर शेयर. सो अमाउंट इज 37,500. दिस इज कुमार शेयर ऑफ गुडविल. मूविंग फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट वुड बी फॉर हिज प्रॉफिट शेयर इन करंट ईयर. सो for profit share also, I hope you know the formula now. We have done it in previous question as well. So formula पहले लिख लेंगे profit share का. Share in current year profit, average profit into concerned period divided by 12 into his share. So concerned period कितना है? 3 months है. जुलाई में डेथ हुआ है उसका. So average profit for 2 years ही हमें बोला है यहाँ पे. So पहले वो average profit निकाल लेंगे. 2 years, 3 and 4 year का ही लेना है, वो भी हमें बताया था. So 3 and 4 year का ये अमाउंट है 2535 divide by 2. So average profit is 30,000. Now this profit will fill in our formula. So 30,000 into concerned period is 3/12 and share is 1/4. So this will give you your amount 1,875, which is your profit and loss suspense account. I hope you remember the journal entry. It is profit and loss suspense account debit to deceased partner's capital account. That is here Kumar's capital account. Now for previous question, हमें क्योंकि बैलेंस शीट बोला था करने, हमने बैलेंस शीट एसेट साइड पे इसका इफेक्ट लिखा था. Do you remember? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट. यहां पे बैलेंस शीट है ही नहीं, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट तो नहीं लिखना है. बट विच इफेक्ट वी हैव टू रिकॉर्ड? ये कुमार्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में
वी हैव टू रिकॉर्ड द सस्पेंस वाला पार्ट. सो जितना वर्किंग नेसेसरी था वो सब हमने कर दिया. ऑल्सो माइंड यू, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, ये एंट्री लिखना जरूरी नहीं है आपको वर्किंग नोट में, ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहां पे दिखाया है. दे नीडेड दिस वर्किंग, ये क्लियरली लिखना है आपको 1875 तक का, ठीक है. और गुडविल का जो भी वर्किंग था, एंट्रीज लिखना उन्होंने बोला नहीं है, तो आपने ये नहीं लिखना है, सिर्फ वर्किंग दिखाना है क्लियर वे में, जितना क्लियर हो सके उतना. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ वी विल रिकॉर्ड एवरीथिंग इन कुमार्स कैपिटल अकाउंट. सब कैलकुलेशंस तो हमने कर लिया है, रेडी है अपना वर्किंग्स. नाउ विल राइट एवरीथिंग. सो कुमार्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू, एनी अकाउंट यू ओपन, फर्स्ट थिंग, करेक्ट, यू आर राइट, बैलेंस लिखना है हमें, ओपनिंग बैलेंस. तो सबसे पहले कुमार्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे फ्रॉम द बैलेंस शीट. 17,000 है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000. ऑल्सो व्हाट वी हैव इन बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व. सो 8,000 इज फुल अमाउंट, उसमें से कुमार का शेयर कितना है, तो 1/4. यूजुअली क्या करते हैं, पूरा अमाउंट हमें अभी आदत हो गया है, तीनों पार्टनर में डिवाइड करते हैं या दो पार्टनर में डिवाइड करते हैं. अभी सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल है, तो उसका ही शेयर हमें चाहिए. 8,000 into 1/4, its share is 1/4, so obviously amount 2,000. कुमार का शेयर हमें मिल गया. Now whatever we have calculated till now, वो हमें यहाँ पे लिखते जाना है. देखो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से कुमार शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,000, that we will record here by profit and loss adjustment account, which is 1,000. उसके बाद हमने गुडविल भी कैलकुलेट करके रखा है कुमार का वर्किंग नोट में, which is 37,500. ये वर्किंग आपने किया, वो भी लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट 37,500. एंड ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, दैट इज हिज करंट ईयर्स प्रॉफिट शेयर. सो 1875 बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट 1875. बाय ऑल दीज योर कैपिटल गोना इंक्रीज, इसके लिए वो क्रेडिट में लिखा. ये सब की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कुमार का, इसके लिए ये सब क्रेडिट में लिखा. अभी कुछ एडजस्टमेंट्स बचा है कैपिटल से रिलेटेड, वो लिख लेते हैं. सो ड्राइंग्स 5,000 बोला है, ड्यू टू ड्राइंग्स कैपिटल विल रिड्यूस, इसके लिए डेबिट में आएगा वो, टू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000. ऑल्सो वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से क्या होगा, कैपिटल कम होगा, सो डेबिट में ही आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, दिस इज द फुल सिनेरियो ऑफ योर Kumar's capital account. Now what we'll do is we'll balance this. ये बैलेंस कर लेते हैं, सब हमने लिख दिया, सब एडजस्टमेंट्स हो गया. Now we'll balance it. Credit balance, credit total sorry is 59,375. उसमें से 5,500 माइनस करेंगे तो we'll get the balancing amount which is 53,875. Now this is what have they mentioned to pay this to Kumar's executor? Nothing was mentioned like that. So what we'll write is Kumar's executor's loan account, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए भी लिखा था. मैं बार बार प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको भी समझे कि ऐसा कुछ अलग से हमें कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ कुमार का कैपिटल अलग से लिखना है. जो हम पार्टनर्स का, तीनों का, दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर है एक साथ कॉलम करते थे, वो कैपिटल अकाउंट अभी नहीं है, ये अलग कैपिटल अकाउंट है, बट लिखना तो वो ही है सब, ओनली रिलेटेड टू कुमार. तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन का बार बार रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको समझे कि बहुत कुछ अलग नहीं हो रहा. जो हमें बताया गया अकॉर्डिंगली हम ट्विस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्विक कर रहे हैं अपना आंसर. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड हियर एंड्स आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. वी गोना हैव अनदर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन in our next module. Till then you can practice such questions. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके बुकलेट में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो.